In the previous chapter, we have studied about matrices and algebra of matrices. We have also learned that a system of algebraic equation can be expressed in the form of matrices, right? This means a system of linear equation like these equations. This is the linear system of equation there, right? And it can be represented like this in the form of multiplication. So we have done some various questions also in the chapter 3. The system of equation has a unique solution or not. यूनिक सॉल्यूशन हो भी सकता था, नहीं भी होता था, राइट? इज डिटरमाइंड बाय द नंबर. So this is the number a1 b2 minus a2 b1. Recall that if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, what is that condition? That condition is for unique solution. और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती थी, हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. और वी कैन से दैट a1 b2 a2 b1 is not equal to 0, then the system of linear equation has unique solution. So this thing we have studied in class 10th, this thing, when the line is intersecting parallel, right? So now basically the number obtained here, this number, the number a1 b2 a2 b1 is called determinant. So what is determinant? Determinant, I am introducing the name of the chapter now, is called determinant. So what is determinant? Determinant basically is a number, right? So let me elaborate it little bit more. Suppose if it is written like this, a1 b1 a2 b2, like this, and the determinant matrix is denoted like this. Suppose this is any matrix A, right? अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूं, a1 मल्टीप्लाइड विद b2, फिर माइनस का साइन पुट करूं एंड a2 मल्टीप्लाइड विद b1, a2 b1, सो एक हमें नंबर मिलेगा, राइट? So it is the number we have obtained only from the square matrices. Determinant is related only to the square matrices. So this number obtained is called determinant. This number obtained is called determinant, right? So look at the example here. Suppose यहाँ पे ये नंबर होते, अगर ये होता 1 2 3 4, ठीक है? So 1 multiplied with 4, it comes out to be 4. Let us try to understand it with the help of example. 4 minus 2 multiplied with 6, 3 2 जा 6. So minus 2 आया मेरे पास. This minus 2 is called as determinant in this case, and this minus 2 is the number which is related to this matrix A, right? This that ये determinant एक number है जो इस square matrix A से relate करता है, right? Relate to the square matrix A, और इसका हमने नाम दिया, the name of this number is, the name of our chapter 4 is called determinant, right? So this the topic determinant have wide application in engineering. Engineering में इसका applications है, in science, in economics, in social science, etc. So this determinant is having a wide range of applications there, right? In this chapter we shall study determinant up to ऑर्डर 3 ओनली विद रियल एंट्रीज. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल ऑर्डर 3 के डेटरमिनेंट को, अप टू ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 से ऊपर नहीं जाएंगे. सपोज 4 into 4 मैट्रिक्स नहीं लेंगे, सो 1 into 1, 2 into 2 एंड अब मैक्सिमम 3 into 3 मैट्रिक्स, राइट? सो एंड ऑल द एंट्रीज आर रियल इन दैट मैट्रिसेस, राइट? ऑल्सो वी विल स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द माइनर्स. We will study about the cofactor, application of determinant in finding the area of triangle, adjoint, inverse of a square matrix, consistency and inconsistency of system of linear equation, and solution of linear equation in 2 or 3 variable using inverse of a matrix. So this is the topic we are going to discuss in this chapter, right? Okay, so start करते हैं. Let's start the chapter. To every square matrix A is equal to Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A, where Aij equals to I, jth element of A. So what is written here? To every square matrix A, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है. वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं? हर एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है. दैट नंबर में बी रियल और इट मे बी कॉम्प्लेक्स, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स हियर.
the complex number here. So we studied about only the real numbers, and that number is called, the name of that chapter is called determinant. वो जो number होता है, that number associated with the square matrix is called determinant here. So that is the determinant of the square matrix A, where Aij is the ijth element of A. So this thing we have know. Now let's move forward. So that number is called as determinant. Look at this here. If you look at this, suppose a matrix A is given here to us. The matrix A is A, B, C, D. एक matrix हमें given है A, B, C, D, right? Then the determinant of A is written as. तो determinant को कैसे लिखेंगे? Determinant of A is written like this. So determinant of A is written like this, A and like this. ठीक है, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ऐसे. मैट्रिसेस के जो ब्रैकेट होते थे वो ऐसे होते थे, लाइक दिस. ठीक है, ये होते थे. अगर मैट्रिसेस के ब्रैकेट को डिटरमिनेंट में चेंज करना है तो हमें ये हटाना पड़ेगा. इट इज लाइक अ क्लोज्ड ब्रैकेट. सो ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, ये रिमूव किया. सो इट बिकम अ डिटरमिनेंट, राइट? एंड वी नीड टू राइट द नंबर्स हियर, ए, बी, सी, डी. ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए. ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म डीईटी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट? So it is also denoted by A, it is also denoted by like this, or it is denoted by determinant of A, or sometimes it is denoted by this symbol. This symbol is called as del. ऐसे determinant, like a small triangle, ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं. तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा determinant को डिनोट कैसे करते हैं. determinant of A ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, right? Look at this. First, for matrix A, this modulus A is read as determinant of A and not modulus of A. Okay, it will be read as determinant of A. Second one is only square matrices have determinants. Yes, very important thing in the first point. ये हम लोग ऐसे इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मॉडुलस फंक्शन भी जानते हैं. सो वी डू नॉट रीड दिस एज मॉडुलस ऑफ ए, राइट? सो इट इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए हियर. यहाँ पे ये मॉडुलस नहीं है. मॉडुलस फंक्शन वी हैव स्टडीड, वी नो अबाउट द मॉडुलस फंक्शन विच ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू. जैसे -2 का मॉडुलस तो वो 2 देता था. तो दैट इज नॉट हियर, दिस इज नॉट हियर. सो वी डू नॉट नीड एंड डोंट बी कंफ्यूज विद दिस साइन हियर. सो दिस इज, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे डेटरमिनेंट ऑफ ए, राइट? नॉट मॉडुलस ऑफ ए. दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? नाउ द सेकंड रिमार्क. सेकंड रिमार्क इज दैट, तो ये जो डेटरमिनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेट करता है. ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ ही ये नंबर एसोसिएट होता है, राइट? सो अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड determinant, and it is only associated with the square matrix only, right? Now look at this, how to find out the determinant of a matrix of order 1. So what is the meaning of this order 1? order 1 जो वर्ड यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 into 1 होगा, तो जिसमें रोज भी 1 होंगी और कॉलम भी 1 होंगे, राइट? नाउ लुक एट हियर, लेट A is equal to this matrix with a matrix of order 1, order 1, order 2, order 3. ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बोला जाता है. वरना तो ऑर्डर अगर होगा 3 into 2 तो उसको बोलते हैं 3 into 2, 3 रो और 2 मैट्रिक्स. लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे बोल देंगे ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 का मतलब अंडरस्टूड है कि रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, राइट? सो इन दैट केस लेट A is equal to this with a matrix of order 1, then determinant of A is defined equal to A. Let me explain this what they want to say here. एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं. ये को कह रहे हैं अगर कोई मैट्रिक्स है A, तो अगर ये 1 है और ऐसे रखी हुई है, तो इसका अगर आप डेटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का, तो डेटरमिनेंट को किसे डिनोट करेंगे? A को लाइक दिस, राइट? सो ये 1 के इक्वल ही आएगा. तो अगर अंदर A है तो ये किसके इक्वल आएगा? A के ही इक्वल आएगा. तो दे वांट टू से दैट अगर अंदर A है तो ये किसके इक्वल आएगा? A के ही इक्वल आएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द सेकंड एग्जांपल. सपोज एक मैट्रिक्स B है जिसके अंदर एलिमेंट 2 लिखा हुआ है, तो उसका अगर आपको डेटरमिनेंट फाइंड करना है, डेटरमिनेंट ऑफ A, तो कितना आएगा? इट्स इक्वल टू 2 ओनली. एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज एक मैट्रिक्स लिखी हुई है C और उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 5.
ऐसे मैट्रिक्स है 5, तो इसका ऑर्डर कितना है 1, तो 1 इंटू 1 को ऑर्डर 1 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डेटरमिनेंट कितना आएगा, डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 इन दिस केस। सो डेटरमिनेंट को 3 वेज में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने यहाँ पे यूज किया, सेकंड वे डेटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में, और ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। आई होप दिस डेटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज क्लियर टू यू। इट इज ओनली द नंबर रिटन इन द मैट्रिक्स, राइट? So now let's move forward. Look at this here. It is the determinant of matrix of order 2. Order 2 का क्या मतलब है? Order 2 का मतलब है कि अब जब order उसका 2 into 2 होगा, 2 rows होंगी और 2 column होंगे. So how to find out? So अब हम लोग सीखेंगे how to find out the determinant of that matrix, right? Suppose let एक matrix यहाँ पे let की हुई है A and its element is A11, A12, A21 and A22. Be a matrix of order 2 into 2, then the determinant of A is defined as determinant of A like this. So क्या करेंगे, देखो A11 को किससे मल्टीप्लाई किया, A22 से, A11 मल्टीप्लाइड विद A22, देन A21 मल्टीप्लाइड विद A12 और उसको माइनस कर दिया, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैट्रिक्स ली मैंने 2, 3, 4 एंड 8 और मुझे इसका फाइंड करना है डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट कैसे फाइंड करूंगा, ए के यहाँ पे, एक ऐसे, एक यहाँ से, ए के दोनों तरफ दीवार बना देनी है, ए को कहीं नहीं जाना, अंदर रहना है। ए के दोनों तरफ यू हैव टू पुट द वॉल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ए। देखो फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को A11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड विद 8, राइट। देन फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। एंड देन दिस एलिमेंट फॉर A121 एलिमेंट को A12 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब आपके पास यहां से आएगा 8 2 16 minus 12 is equal to 4. So 4 is the determinant in this case. I hope it's little bit clear to you how to find out the determinant of 2 into 2. Let me give you another example here to you. So let us take another example. Example 2. So अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सो बी मैंने ली एक मैट्रिक्स, सपोज इट्स 5 3 2 4, so it's 2 into 2 matrix, yes. So how to find out its determinant of this matrix B? So first 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 5 मल्टीप्लाइड विद 4, देन माइनस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाइड विद 3, ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3. So the answer in this case is 20 minus 6 is equal to 14. So ये 14 आप देख रहे हैं डेटरमिनेंट क्या आता है। अभी हमने डेफिनेशन देखी डेटरमिनेंट की, डेटरमिनेंट इज अ, व्हाट इज दिस 14? 14 इज अ नंबर, एक नंबर आता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो व्हाट इज डेटरमिनेंट, ये बी का डेटरमिनेंट क्या आया, एक नंबर आया। सो द डेफिनेशन ऑफ डेटरमिनेंट इज, व्हाट इज डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट इज अ नंबर। तो डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट एक नंबर होता है। अब देखो किससे एसोसिएट कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, ठीक है। उसको फाइंड कैसे करते हैं, 1 into 1 में वो नंबर सेम आता है, एंड 2 into 2, सो दिस इज लाइक दिस, वी कैन फाइंड आउट द determinant of a matrix 2 into 2. I hope this thing is little bit clear to you now.